جی اب لائیو ہو گیا جی، ٹھیک ہے. چلے ابھی بہت بہت شکریہ معزز ناظرین. میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا پروگرام جو پاک برٹش آرٹ اسکینڈینیویا کی طرف سے یہ انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں نامور شعراء، جس میں جناب محترم نواب نقوی صاحب اور سبیہ سنبل صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو اس کے علاوہ یونس متین صاحب نے پاکستان سے ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن وہ تھوڑے سے لیٹ ہیں، تو اس کو ابھی بعد میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. تو مہمان گرامی، آپ کی اجازت سے میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم نے ان مسلمانوں کی حالت پر غور کیا جو دین کی تکذیب کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو معاشرے میں تنہا یعنی یتیم رہ جاتے ہیں ان کو دھکے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے روزگار کا سلسلہ رک جاتا ہے یعنی مسکین لوگ، وہ ان کی روٹی کی فکر نہیں کرتے. اور ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور یہ لوگ اصلاۃ کے حقیقت سے بے خبر ہیں، اور یہ لوگ محض ظاہری حرکات و سکنات کو ہی صلاۃ سمجھ لیتے ہیں، اور رزق کے چشموں کو جنہیں تمام انسانیت کے لیے کھلا رہنا چاہیے ان پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. تو معزز ناظرین، تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہم جو پاک برٹش آرٹس کی طرف سے بے شمار پروگرام سویڈن اور ڈنمارک سے کر چکے ہیں، اور قریب ہم ناروے سے بھی پروگرام شروع کریں گے. تو اور جو بہت لوگوں نے پسند فرمائے ہیں، اور میں یہ بھی ناظرین جو بھی ہمیں پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آن لائن مشاعرے ہیں ان میں جو داد کا طریقہ یہ ہے کہ کمنٹس میں آپ لائکس کریں اور کمنٹس لکھیں، تو یہی داد ہوتی ہے اس طرح کی. تو اب میں ایک دفعہ آپ کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ محترمہ سبیہ سنبل، جو ایک نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی شہرت یاب شاعرہ ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی دل پذیر اور دلکش ہے، اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت اور ترنم سے یہ شاعری پڑھتی ہیں. تو ان کو خوش آمدید. شکریہ. اور جناب پروفیسر نواب نقوی صاحب، یہ تو کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے. ان کا جو ہے تعارف یہ ہے کہ یہ پورے نہ صرف بر صغیر بلکہ اور عالمی سطح پر بھی جانے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت بھی ہے کہ علم میں میر کی سادگی اور روانی اور غالب کی فوج فکر اور اقبال کی بلند آہنگی پائی جاتی ہے، اور ان کو کلاسیکی روایات سے مکمل آگہی ہے اور عصری شعور کا ادراک بھی ہے، اور زبان و بیان پر مکمل دسترس ہے. بیچ میں آواز کھل رہا ہے. اور ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ تھوڑا مشاعروں میں کم آتے ہیں ویسے تو، لیکن جو ہے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ ان کے استاد جو ہیں وہ استاد گرامی کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہیں کوئی ایسے تو استاد ان کے نہیں ہے کوئی، لیکن روحانی طور پر غالب اور اقبال کو اپنا استاد مانتے ہیں. پھر مزید ان کی شاعری کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور سب سے پہلے میں پروگرام کی ابتدا کرنے سے ایک اپنی غزل کے چند اشعار مہمانان گرامی کی اجازت سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک پرانی غزل ہے، تو امید ہے ناظرین کو اور آپ کو پسند آئے گی. تو عرض ہے کہ دل کی شاخیں نچوڑتا ہوں میں، دل کی شاخیں نچوڑتا ہوں میں، یوں محبت ٹٹولتا ہوں میں، کیوں محبت یوں محبت ٹٹولتا ہوں میں،
यूं मोहब्बत टटोलता हूँ मैं, दिल की शाखें निचोड़ता छोड़ता हूँ हूँ मैं। मैं, यूं जी मोहब्बत टटोलता हूँ मैं, टटोलता हूँ और मैं। बागे दिल में शजर मोहब्बत का, हम्म, बागे दिल में शजर मोहब्बत का, रोज फल इससे तोड़ता हूँ मैं। बागे दिल दोबारा में दोबारा शजर मोहब्बत दोबारा का, पढ़िए इफ्तिखार साहब। जी शुक्रिया। बागे दिल में शजर मोहब्बत का, रोज जी, फल इससे तोड़ता हूँ मैं, वाह। और कैसे सोती हो चैन से जाना, हम्म, कैसे सोती हो चैन से जाना, रात सारी क्यों जागता हूँ मैं, रात कैसे सारी सोच। क्यों जागता हूँ मैं। जी जी, और बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और होते हैं फैसले बहुत मुश्किल, जी, होते हैं फैसले बहुत मुश्किल, सोच लो तुम भी, सोचता हूँ मैं। नहीं नहीं, आवाज आवाज क्लियर नहीं आई, सोचता। अच्छा, दोबारा पढ़िए। जी मैं, होते हैं फैसले बहुत मुश्किल, हम्म, होते हैं फैसले बहुत मुश्किल, सोच लो तुम भी, सोचता हूँ मैं। सोच लो तुम सोच भी, लो तुम सोचता भी, हूँ मैं। सोचता सोचता हूँ हूँ मैं। मैं। जी अच्छा है, अच्छा है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। वाह। और चाहती हो कि छोड़ दूं तुमको, हम्म, चाहती हो कि छोड़ दूं तुमको, है तो मुश्किल, लो छोड़ता हूं मैं। बहुत खूब, बड़ी अच्छी धमकी दी है आपने, माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। चाहती हो कि छोड़ दूं तुमको, है तो मुश्किल, लो छोड़ता हूं मैं। लो छोड़ता हूँ मैं। और फिर देखिए कि सोचता जी हूं कि खोल दूं खिड़की, जी, सोचता हूं कि खोल दूं खिड़की, कुछ हवा ताजा चाहता हूं मैं। कुछ हवा ताजा चाहता हूँ मैं, बहुत जी उम्दा। शुक्रिया। सोचता हूं कि खोल दूं खिड़की, कुछ हवा ताजा चाहता हूं मैं, और मोर जंगल में नाचता है क्यों, मोर जंगल में नाचता है क्यों। मोर जंगल में नाचता है क्यों, किन इशारों पे नाचता हूं मैं, किन इशारों पे इन इशारों को किन इशारों नाचता पे नाचता हूँ। नाचता हूं मैं। जी। जी, और मक्ता पेश खिदमत है कि मरना भी चाहता हूं मैं साकिब, जी, मरना भी चाहता हूं मैं साकिब, जिंदा रहना भी चाहता हूं मैं। जिंदा अच्छा। रहना भी, तो फिर क्या बनेगा आप, उधर भी हैं इधर भी हैं, तो बीच में तो कुछ नहीं रहा फिर। मरना भी चाहता हूँ मैं साकिब। आप सर खुद ही फरमाते हैं कि पस मंजर होता है, हर किसी का अपना होता है, जो जी सुनने जी, वाला होता है उसको अपने पस मंजर में लेके उसकी सही। तफसीर करता है, उसकी हर शेर की। हाँ, जी जैसे मैंने मौत पहले, आती है पर नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। जी जी ऐसा ही होता है शायरी में, बेशक, कि दो मुतजाद बातें जो हैं बाज़ औक़ात करनी पड़ती हैं, जिसको जी कि जी पैराडॉक्स कहते हैं। आपने बेशक, बिल्कुल वही बात की है। जी जी जी। जैसे वो शेर अभी मैंने आपको सुनाया पहले कि वो, मैं वो देखा मैंने शेर जब मैंने घर में सुनाया तो मेरी मिसेज ने उसका कोई और तफसीर की, तशरीह की, और मेरे बच्चे जो थे उन्होंने कोई और की, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ ऐसे और दोस्त उन्होंने कोई और की। तो महल हजार सही। उसकी वो तशरीह, वो जो मैंने शेर अभी सुनाया आपको, बस सही सोचता तशरीह हूँ। जो हुई है इफ्तिखार साहब, सही तशरीह जो हुई है वो आपकी जी जी मिसेज ने की है, बाकी सबको छोड़ दें। वो, सही तशरीह उन्होंने की है। मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी तशरीह बिल्कुल सही थी। नहीं वो शेर आप देखिए फिर दोबारा से। जी सोचता जी हूँ जी, कि खोल दूं खिड़की, ठीक है। सोचता हूँ कि खोल दूं खिड़की, कुछ जी, हवा ताजा चाहता हूँ मैं। कुछ हवा ताज़ा अब चाहता हूँ बताएं कि मैं। मेरी मिसेज ने इसकी क्या इसकी तशरीह की होगी। उन्होंने ये कहा होगा कि भाई अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे मेरे होते हुए, सर क्या बात है, वाह, क्या मेरे बात है, मैं बिल्कुल। फौरन पहुंच गया। मेरे होते हुए ये खिड़कियां उड़कियां खोलने का काम बंद करो, मैं अभी जिंदा हूँ। और उन्होंने ये तशरीह की है, मुझे समझ आ गई है बात। बेशक आपने बिल्कुल, मैं कहता हूँ 100% आपने जो है बिल्कुल जी, समझा सही, और वाकई ऐसे ही बात हुई है। लेकिन जो दूसरे मेरे बच्चे थे और दूसरे दोस्त अहबाब जो थे उन्होंने तो कुछ और चीजें उसकी बताई, बहरहाल तो वो उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बच्चे तो बच्चे डायरेक्टली मुतासिर नहीं ना हो रहे थे, मुतासिर तो एक ही खातून। उन्हें तो जी जी उन्हें तो उन जैसी एक और मिल जानी थी। उन्होंने कहा चलो जी अच्छी जी बात है, दो माएँ हमारा ख्याल रखेंगी। लेकिन असल जो मुतासरीन में से जो वो जी आपकी
वाइफ, बहरहाल ये मैं वैसे ही एक जी हंसी नहीं मजाक नहीं, की बात। और ये बड़ा अच्छा है कि प्रोग्राम में थोड़ी सी हंसी मजाक और सारा होना चाहिए और जी अपना जी जी थोड़ा सा जी, अच्छा रहता है। तो सही, हर आपको पता है कि मेरा तो ताल्लुक जो है वो लाइलपुर से है, फैसलाबाद से, तो उधर तो ज्यादा ही मजाक हर बात में करते हैं। तो सही, बड़ा अच्छा लगा। तो मक्ता अर्ज करता हूँ फिर से कि मरना भी चाहता हूँ मैं साकिब, जी, जिंदा रहना भी चाहता हूँ मैं, और दिल की हाँ, शाख में निचोड़ता हूँ मैं, हम्म, यूं मोहब्बत टटोलता हूँ मैं। बहुत बहुत वाह शुक्रिया बहुत आपका और बहुत नाजरीन का बहुत वाह और वाह पसंदगी का। तो वाह। अब मैं बहुत ही आपके और इज्जत, शौरा हजरात नहीं अभी शामिल हो पाए ना? हाँ नहीं वो नहीं हो पाई वो, हाँ। बल्कि जो है मैं अर्ज कर दूं कि वो हमारे पाक ब्रिटिश आर्ट्स के पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, यूनुस मतीन साहब। तो अच्छा मैं ये भी असल नाजरीन अभी को फिर बताता, कुछ नए नाजरीन भी हैं और आप भी नए शामिल हुए हैं। तो ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, जो मैनचेस्टर से एक हमारे जो जो बानी हैं, उनका नाम है डॉक्टर यूनुस मतीन साहब। उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया था, जो कि दो चार दोस्तों के साथ मिल के एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और फिर वो ये हुआ कि वही सर वो शेर मुझे बताने के गलत हो जाए कि वो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस तरीके से फिर अब तकरीबन 40-50 मुल्कों में इसकी जो है मुख्तलिफ शाखें बन चुकी हैं। और इस तंजीम की एक ये खूबी ये है कि इसमें अदबी सकाफती तो इसमें प्रोग्राम्स और सिलसिले तो हैं ही, उसके बाद तालीम और फिर जो है दूसरे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स भी, सारा कुछ इसमें वो करते हैं। तो अब मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरमा सबिया सुंबत साहिबा से, जिनकी दिलकश अच्छा। दिलपजीर शायरी हम अरे सुनने के लिए बेताब हैं और नाजरीन भी, अरे तो आपसे गुजारिश है कि हमें तरन्नुम के साथ मैं एक दो शेर पहले मैं जी ऐसे पेश अच्छा करती हूँ तहत में जी, कि सफीना सफीना डूब रहा था, एक वाह सदा उभरी। वाह सफीना डूब रहा था, एक सदा उभरी। वाह मैं वाह नाखुदा हूँ, बचा लो मुझे खुदा के लिए। वाह वाह मैं वाह नाखुदा वाह हूँ, वाह, बचा लो मुझे क्या खुदा के खूबसूरत लिए। क्या आपने कहना क्या अंदाजा कहना, तैयार वाह किया। वाह मैं बहुत बहुत नाखुदा हूँ, शुक्रिया। बचा लो मुझे बचा खुदा लो के लिए। मुझे वाह वाह खुदा के वाह, लिए। वाह बहुत और उम्दा। अपने लहू को बेश बहा करके आए हैं, वाह अपने लहू को बेश बहा करके आए हैं। हम हक में कातिलों के दुआ करके आए हैं। बहुत खूब, वाह हम बहुत खूब। हक में कातिलों के बातिलों दुआ के दुआ करके आए, कातिलों के दुआ करके आए कातिलों, हैं। वाह और जी, काबू में क्या रखेंगी हमें होशमंदियां, काबू में क्या रखेंगी हमें होशमंदियां। हम वाह एहतमामे लफ्ज़ पा करके आए हैं। वाह वाह क्या हम वाह। कहना, एहतमामे लफ्ज़ पा हम करके इज्तिमा आए में वाह वाह लफ्ज़ लफ्ज़ पा। पा का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लफ्ज़ बहुत पा का। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और एक शेर और की किलत मिले कि संगे मलामत नसीब हो, जी, खिलत मिले कि के संगे संगे, मलामत नसीब हो। जी, कैदे अना से खुद को रिहा करके आए हैं। वाह कैदे कैदे अना से अना से खुद को खुद को रिहा रिहा करके आए। करके वाह आए हैं। वाह, अपने बहुत खूब, लहू बहुत को खूब। बेश बहा करके आए हैं। हम्म, हम हक में कातिलों के दुआ वाह, करके आए हैं। बहुत वाह आप अच्छी, कह बहुत रहे क्या अच्छी। थे कि नज्म तो मैंने थोड़ा सा, अगर एक नज्म कही तो वो 2 मिनट में ऐसे ही इधर से उधर वहां तक गई तो वो पूरी हो गई। तो इस तरह की एक नज्म है, जैसे रिश्ता मैंने कही कि कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ, फिर भी कुछ तो जरूर ऐसा था। वाह जी, खूबसूरत लतीफ सा जज्बा बंद रहता था दिल के कमरे में। हाँ सोचती थी कहाँ है कैसा है, वाह जिंदगी अच्छी कट रही होगी। वाह करवटें ले रही थी एक ख्वाहिश, काश एक बार देख लूं उसको। ये जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश सोचते ही करीब हो जाए। वाह आज एक शख्स ये खबर लाया, वो बहुत दूर जा चुका मुझसे। आज एक शख्स ये खबर लाया, वो बहुत दूर जा चुका मुझसे।
याद बनकर रहेगा अब दिल में, जैसे पहले करीब रहता था, जैसे पहले करीब रहता था। तो मैंने बस इस तरह से कही, अगर कही भी तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तरन्नुम से पेश करती हूँ। इफ्तिकार साहब बहुत परेशान हैं तरन्नुम के लिए। नहीं मैं वो वैसे एक देख बिल्कुल रहा था कि वो भी जी आए कि नहीं इसकी वक्त में। जी मैंने असल में एक गजल मेरे सामने आ गई, थोड़ा रवायती अंदाज है उसमें और पहले जी की है, मैंने सोचा मैं आज यही सुनाती हूँ। एक जी रंग तो मैंने आपको सुना दिया, तो जी जी समाप्त करें, मतलब पेश कर रही हूँ। जी और ये बहादुर शाह जफर की जमीन में मैंने कही थी, मुझे बहुत पसंद थी कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, तो जैसी अब है जैसी अब तेरी हो गई महफिल, मैं जैसे कभी अब ऐसी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो कभी न थी। ऐसी। ऐसी तो नहीं, तो बहुत मैं खूब। पेश कर रही हूँ, मैंने कोशिश की थी कभी, तो मैं आपकी समातों की नजर करती हूँ। बेकसी जीस्त में, बेकसी जीस्त में शामिल, कभी ऐसी तो न थी। क्या कहना, वाह वाह। बेकसी जीस्त में, आज के माहौल को आप देख सकते हैं वैसे इसमें भी। वाह बेकसी जीस्त में शामिल, कभी कभी ऐसी ऐसी तो न थी। वाह, क्या कहना। बेकसी जीस्त में शामिल, कभी ऐसी तो न थी। अब जो है कैफियते दिल, कभी आहा ऐसी तो आहा न थी। बहुत खूब अब बहुत जो खूब है बहुत कैफियते दिल, दिल कभी ऐसी तो कभी न वाह ऐसी तो न थी। और ये शेर, यूं तो हर गाम पर जल, यूं तो हर गाम पर खिलते रहे जख्मों के गुलाब, वाह यूं तो हर गाम पर खिलते खिलते रहे रहे जख्मों के गुलाब जख्मों के गुलाब, यूं तो हर गाम पर खिलते रहे जख्मों के गुलाब। हाँ, क्या कहना। जिंदगी सूरत बिस्मिल, कभी कभी ऐसी ऐसी तो तो न न वाह थी। वाह 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 वाह। वाह जिंदगी सूरत बिस्मिल, कभी ऐसी तो न थी। और ये शेर भी आपकी खूबसूरत समातों की नज्र। जी जी मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर, मगर मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर, मगर जैसी जैसी है आज ये गाफिल, कभी कभी ऐसी ऐसी तो तो न वाह थी। वाह 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 वाह, जैसी है आज ये क्या गाफिल, खूबसूरत तंज है कभी वाह ऐसी तो बहुत न खूब बहुत थी। खूब क्या बहुत कहना, क्या शुक्रिया, कहना। बहुत नवाजिश। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त, माशाल्लाह। मुश्किलें राहे वफा में तो हमेशा आई, हम्म मुश्किलें राह वफा में तो हमेशा आई, मुश्किलें राह वफा में तो हमेशा वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह आई। वाह वाह वाह। फिक्रे दुश्वार ये मंजिल, कभी कभी ऐसी ऐसी तो न तो थी तो न न थी, वाह थी। वाह, क्या फिक्रे कहना। दुश्वारी ये फिक्रे मंजिल वाह 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 दुश्वार सुनील ये साहब मंजिल, क्या कहने, क्या कभी कहने। ऐसी तो न थी। अब जो है कैफियते दिल, कभी कभी ऐसी तो ऐसी तो न न थी थी। वाह। और सारे मक्ता में पेश कर रही हूँ शेर। जी जी शायद। करते आए हैं फुगा अहले गुलिस्तां, लेकिन करते आए हैं फुगा अहले गुलिस्तां, लेकिन करते आए हैं फुगा
अहले गुलिस्तां लेकिन हालते चश्मे अना दिल कभी ऐसी तो न थी। हालते चश्मे आना, क्या खूबसूरत तरकीबें आप इस्तेमाल हालते, कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। हालते चश्मे अना दिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी। और मैं मक्ता पेश करती हूँ। आम थी रस्म वफा पहले भी सुम्बुल लेकिन, आम थी रस्म वफा पहले भी सुम्बुल लेकिन, आम थी रस्म वफा पहले भी सुम्बुल लेकिन, तेजी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। तेजी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। वाह वाह, आम थी, आम थी रस्म वफा पहले भी सुम्बुल लेकिन, आम थी रस्म वफा पहले भी सुम्बुल लेकिन, तेजी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। तेजी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी, बेकसी जीत में शामिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, भैया जी, बहुत शुक्रिया। जादू भरी शायरी और जादू भरी आवाज, क्या बात है, इंसान उसमें गुम हो जाता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। आपसे असल में ये अब अर्ज करना था कि हम आपसे तो मुतारफ हैं, लेकिन नाजरीन थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप जो है ताल्लुक कौन से शहर से है इंडिया से, और जो आपकी कितनी जो है तख्लीकात हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। जी, मेरा ताल्लुक जो है, मैं पहले तो सब नाजरीन को आदाब पेश करती हूँ और उनकी मशकूर हूँ कि वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपको भी मैं इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूं। मैं भूल गई थी, मुझे देनी चाहिए थी, पहले ही देना चाहिए था। तो मेरा ताल्लुक, आप तशरीफ लाई मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है। क्या नवाजिश। और मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है, पैदाइश यहीं की है, मेरी तालीम भी यहीं से हुई है, AMU से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा किया। और मेरी किताबों का अगर कहें तो मैंने पहली जो किताब है वो हम्दो नात को लेकर मैंने मिलाद की किताब एक्चुअली उस तरतीब दी कि जिसमें कि मैं वो मेरा जहन में जो चल रहा था वो बच्चियों के लिए था। एक्चुअली मैं चाहती थी कि सलीस जबान में मैं कुछ अहम जो चीजें हैं इस्लाम की पहुंचा सकूं, और उसमें हम्दो नात का भी मैं सहारा लूं। बाकायदा ये एक अच्छा सोर्स है कि इसके थ्रू जो है वो अपने इसको जान सकते हैं और आसान जबान में जान सकते हैं। और वो लोगों, मैंने सब्जी फरोशों को वो और दुकानदारों को मैंने बाकायदा वो किताब ऐसे ही बांटी, राह नजात, जो पहली किताब थी जो मिलादुन नबी पर बेस्ड थी। उसकी डिमांड है तो मैं अब दोबारा उसे पब्लिश कराऊंगी इंशाल्लाह, उसमें मजीद इजाफों के साथ। और दूसरी मेरा शेरी मजमुआ है जो लेट कह सकते हैं हम उसको, 2016 में वो आया मंजर आम पर, हर्फ हर्फ किरण के नाम से। तो ये है, और अगली किताब मेरी फन अगर मुकम्मल हो इंशाल्लाह, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द ला सकूं और मैं नज्म की अलग ला सकूं। अभी फिलहाल मैं उस पर जरा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ जो आगे की शायरी हो रही है। और नसरी अदब में भी मेरा थोड़ा सा अमल दखल है, अफसानचे लिखती हूँ
और जी, थोड़े बहुत आर्टिकल भी लिख लेती हूँ, बहुत सारे अखबारात में बाहर के जो है वो पाकिस्तान के भी है कई अखबारात जिन्होंने पब्लिश किया है, जी, टॉपिक जी, देकर वो अक्सर चीजें मुझे लिखवा जी, लेते हैं। जी, बस इतना सा मेरा तारुफ है, और वो बहुत छोटी सी शायर हूँ, जी, और जी, नहीं एक माशाल्लाह। जमाने में मुशायरे बहुत जी, पढ़े, जी, और जी, 30 साल से जो है गोशा नशीनी अख्तियार की, 30 साल तक। फिर उसके बाद यहाँ लोगों ने फिर कहा कि नहीं, वापस आइए, वापस आइए। जी, जी। तो बस ये समझ लें कि 10 साल की वापसी है मेरी। तो आप वो ये ये कह रहे हैं कि कुंदन बनने गई थी, फिर कुंदन बन के आई हैं 10 साल बाद। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उस पीरियड में। मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये 10 जी, साल जी, में मैंने कोशिश जी, की है कि उन 30 साल को मैं मिला सकूं, जी, बस जी, जी। इतना है। और आप लोग ये जो जैसे मिल फन गए है जी। और ये शायरी है, सर बैठे हैं नवाब नकवी साहब इसका बताएंगे। ये जो है, ये बीज जो है इसका, ये पलता रहता है, और फिर वो जब निकलता है तो फिर वो सही पौधा बन के निकलता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा आपने, और अल्लाह ताला का अल्लाह करे ज़ोरे कलम और माशा ज़्यादा आपका, और आपको माशा पेशगी मुबारकबाद अगली किताबों की भी। तो ये है कि शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि असल में ये मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो भी गुरदासपुर बटाला से हिजरत करके आए थे। मैं तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, तो जी, जी, जी। उनसे सारा ये सुने थे। तो अब ये बताएं कि ये जो इंडिया में अब क्या हालात हैं? जी, माशाल्लाह। वैसे तो अब आप सभी जगह के हालात इस वक्त तो सभी जगह के बहुत ज्यादा, हम जी, नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है। जी, जी, दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि जी, जी, सारी दुनिया में अमन और सुकून हो जाए पैदा, और जी, जी, हमारे जी, यहाँ भी हो जाए। बस वो ये है कि अच्छे बुरे सब जगह चलते रहते हैं, हर मुल्क की जी, अपनी एक कहानी होती है। बस जी, ऐसे जी, ही मेरे मुल्क की भी कहानी है, लेकिन फिर भी बहुत माशाल्लाह, फिर भी मैं कहूंगी कि बेहतर है, जी, अच्छा जी, है। जी, अच्छा। जी, तो जी। अवनी वो अभी जो ये मुसलमानों के साथ थोड़ा सा जो है था अभी प्रॉब्लम, तो अभी वैसे आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अच्छा ऐसी गुफ्तगू हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं हमें करनी चाहिए अदब, वैसे। हम अदब के प्लेटफॉर्म पर हैं। जी, हम जी, जी। अदबी गुफ्तगू करें तो हाँ, वो नहीं, नहीं, ज्यादा अच्छा है नहीं ना। पॉलिटिकली जी हाँ, नहीं, मतलब ऐसे जी ही वैसे जी हाँ। अखलाकन पूछ लिया था, कोई ऐसी बात नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी जी, जगह कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते हैं, अप्स जी, एंड जी, जी, डाउन होते रहते हैं, लेकिन जी, जी, अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरे यहाँ बहुत हाँ, अच्छा नहीं है अच्छी बात। सब कुछ। जी, जी, जी जी। जी हाँ, नहीं बड़ी अच्छी जी बात है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा, और अभी जी हम और भी आपसे सुनेंगे। और मैं अभी एक दफ़ा फिर ये नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम आज जो है हम आपको पेश खिदमत लेकर आए हैं, और ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स स्कैंडिनेविया के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, और मैं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहसन खातिब, कोऑर्डिनेटर स्कैंडिनेविया। तो मैं आपसे हम हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, और मैं चलूँगा बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो है हमारे साथ, और मोहतरम जनाब प्रोफेसर नवाज नकवी साहब, और उनको मैं उनके एक शेर से ही उनको मुदई करूँगा। और वो, और शेर शेर भी उनका एक बहुत उसमें गहराई है, और मैं ये अर्ज करता हूँ। उस खराबे में कभी था मेरा घर देखता हूँ, उस खराबे में कभी था मेरा घर देखता हूँ, चांद की छत पे खड़े होके खंडर देखता हूँ, चांद की छत पे खड़े होके खंडर देखता हूँ। तो ये था उनका शेर, और इसमें जो मैं भी चाहूँगा कि नाजरीन को ये बताएं, इसमें एक तो ये घर और चांद और ये खंडर और जो है सारा, इसका क्या पस मंजर है। और मैं चाहूँगा कि ये फिर हमें अपना खूबसूरत कलाम हमारी समाज की नज़र से बताएं। जी, जी जनाब प्रोफेसर नकवी साहब। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साकिब साहब। जी, आपने इब्तिदा ही बड़ी संजीदगी के साथ की है। मेरा मिजाज जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ऐसी भारी भरकम संजीदगी जो है वो कभी जी, इख्तियार नहीं करता हूँ। ये अलग बात है जी, जी, नहीं, नहीं कि कोई ऐसी शेरों बात में ज़ाहिर फिक्र का इस्तेमाल तो करना नहीं। होता बेशक, है। बेशक, जी, जी, तो पहले मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जो शेर जी, आपने मेरा पढ़ा है इसकी वजाहत बेशक, कर देता हूँ, जी, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने कलाम, दूसरे कलाम की जी, तरफ। बेशक, बेशक, इरशाद, इरशाद। असल में बात यह है कि जो इस वक्त आलमी हालात पाए जा रहे हैं उसकी तफसील जो है उसमें मैं सबको मालूम है जो कुछ हो रहा है। तो जी, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है।
जी जी आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि चौथी जंग अजीम जो है वो जी। डंडों और लाठियों से होगी। बेशक। ये आइंस्टाइन का जुमला है जी जी जिसका मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा है। बेशक। मकसद उसका ये था कि अगर खुदा न खास्ता मैं कई मर्तबा जितनी दफ़ा कहें मैं उतनी दफ़ा खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जो आलमी इस वक्त सूरत हाल है आपके मेरे सामने, बेशक। कि तीसरी कोई ऐसा मामला होता है। 2 दफ़ा तो देख चुका है, दुनिया देख चुकी है कि क्या हुआ था। जी जी तो उसके बाद इंसान फिर वही गारों के और पत्थरों के ज़माने में चला जाएगा। बेशक। इस पस मंज़र में मैंने ये शेर कहा था। जी जी वाह। क्या शेर था कि उस खराबे में उस खराबे में हम्म, कभी था मेरा घर, देखता हूँ देखता हूँ। वाह। चांद की छत पे खड़े होके खंडर देखता हूँ। हाँ, क्या कहें। वाह। हाँ, ये उस शख्स की ज़बानी बात हो रही है जी जी कि जो तीसरी जंग अजीम से गुजर चुका है। जाहिर है ये इमेजिनेशन है मेरी, जी जी बेशक। और जो कुछ भी एक शायर जिस तरह विजुअलाइज कर रहा होता है आने वाले वक्त को, उस इमेजिनेशन के तहत ये शेर मैंने कहा जी बेशक बेशक। कि मैं चांद पर खड़ा हुआ हूँ, चांद की सरजमीन पर, जी और इंतहाई अफसोस और हसरत से अपनी जमीन की तरफ देख रहा हूँ, कुरे अर्ज की तरफ देख रहा हूँ, बेशक बेशक। और वहां खड़े होकर मैं कहता हूँ कि उस खराबे में कभी था मेरा घर। बेशक। मेरा घर, मेरी रौनकें, जो कुछ भी आप दुनिया में इतनी तरक्कियां हो चुकी हैं, आज हम बैठकर इस पर बात कर रहे हैं, तरक्कियों की मेराज है इस वक्त 22वीं सदी में, 21वीं सदी में। तो मैं बड़ी हसरत से वहां पर खड़े होकर चांद पर और ये बात कर रहा हूँ कि उस खराबे में कभी था मेरा घर, देखता हूँ चांद की छत पे खड़े होके खंडर देखता हूँ। मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन पस मंजर का जानना जरूरी था। जी जी जैसा कि आपने फरमाया, पस मंजर का जानना जरूरी था, और बस ये थी। बाकी मेरे भाई इफ्तिखार साकिब साहब और सुंबुल साहिबा, बात यह है कि आज मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपनी जवानी के कुछ शेर जिसमें रोमांटिसिज्म हो, शोखियां हो, कुछ शरारतें हो, वो मैं करूं। आपने इब्तिदा संजीदगी से कर दी, और मेरा मिजाज है गालिब से मिलता जुलता, मैं कभी भी बहुत ज्यादा देर तक संजीदा रह नहीं सकता। जी जी बेशक बेशक। तो पुरानी कुछ चीजें पेश कर देता हूँ। जी पहले कथा है, 4 मिसरों का कथा है। जी जी। इश्क की सीढ़ियों पे पहला कदम, इश्क की सीढ़ियों पे पहला कदम सोच कर देखभाल कर रखना। वाह। इश्क की सीढ़ियों पे पहला कदम सोच कर देखभाल कर रखना। वाह। मुझसे जब गुफ्तगू करो आगाज, धड़कनों को संभाल कर रखना। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत अच्छा है। वाह। मुझसे जब गुफ्तगू करो आगाज, धड़कनों को संभाल कर रखना। वाह। इसी तरह से 2-3 शेर एक गजल से पेश करता हूँ। जी जी। अगरचे जाने हज़ी पे क्या क्या अजाब आए, बहुत अच्छा। वाह। अगरचे जाने हज़ी पे क्या क्या अजाब आए, क्या कहना, क्या कहना। मगर हर एक मरहले से हम कामयाब आए। वाह। मगर हर एक मरहले से हम कामयाब आए। सबा से पूछो कि अब वो गुंचा दहन कहाँ है। वाह। सबा से पूछो कि अब वो गुंचा दहन कहाँ है, कि जिनके लब चूम लो तो बुए गुलाब आए। वाह। कि जिनके लब चूम लो तो बुए गुलाब आए। कोई खुदा के लिए उन आंखों को ढूंढ लाओ,
हाँ, कोई खुदा के वाह, लिए उन आँखों को ढूंढ ढूंढ लाओ, कहीं तो गर्दिश में आज जामे शराब आए। कहीं क्या तो कहने, क्या गर्दिश में कहने, वाह आज वाह जामे वाह। शराब आए। वाह वाह जी वाह, फिर से कोई अता हो जी, कोई खुदा के बहुत अच्छा। लिए, कोई खुदा के लिए उन आँखों को ढूंढ लाओ, कहीं तो गर्दिश में आज जामे जामे शराब शराब आए। आए। क्या क्या कहने, अच्छा क्या है, वाह कहने, वाह जबरदस्त। वाह। एक और पुरानी चीज है, जी जी, कैफ में डूबे हुए दिन थे, हाँ, जवां रातें थीं। वाह वाह, हाँ हाँ, कैफ में डूबे हुए दिन थे, जवां जवां रातें रात। थीं। क्या जमाना था कि जब उनसे मुलाकातें थीं। अरे वाह, वाह 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 क्या क्या वाह कहने, वाह, जमाना कहने, था वाह बहुत वाह, अच्छा है। क्या कि जब जमाना, वाह, उनसे मुलाकात। मुलाकातें थीं। सुबह को हाँ गोशे रुखसार पे खिलते थे गुलाब। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सुबह सुबह को को गोशे रुखसार पे रुखसार पे खिलते थे खिलते थे गुलाब। गुलाब। शाम को भीगी हुई जुल्फों की बरसातें थी। वाह, अरे क्या वाह कहने, क्या वाह कहने, वाह, वाह, वाह। सुबह को बहुत गोशे अच्छा है। रुखसार पे खिलते थे गुलाब। हाँ हाँ शाम को भीगी हुई जुल्फों की बरसातें थीं। अब मंजर हाँ, तब्दील होता है। जी, अब ना वो दिन हैं, न रातें, न रातें, न मुलाकातें न हैं। मुलाकातें हैं। क्या कहने, क्या कहने, हम्म, वाह, क्या अब ना रवानी वो है, दिन हैं, न रातें, न मुलाकातें हैं। उनसे मिलने की दुआएं हैं, मुनाजातें हैं। मुनाजाते अरे हैं, वाह 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 वाह, वाह, क्या क्या कहने, कहने। वाह, मैंने वाह बहुत कहा ना, बढ़िया, मंजर वाह मंजर यकलख यकलख पलट जाएगा मंजर। वाह। जी जी, जबरदस्त, वाह, अब ना वो दिन है, न रातें, न मुलाकातें हैं। उनसे मिलने की दुआएं हैं, मुनाजातें हैं। वाह, हिजर की फसल कटे, वसल का मौसम आए। हाँ बस हाँ, हाँ यही हाँ, बहुत जिक्र, अच्छा। हिजर की बस फसल कटे, वसल का वसल का मौसम मौसम आए। आए। बस यही जिक्र, यही फिक्र, यही बातें हैं। हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छा है, वाह क्या वाह कहने, वाह क्या वाह कहने, वाह 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 वाह। वाह, अच्छा, अब बहुत ऐसा खूब, है इफ्तिखार जी जी साकिब साहब, जी जी, इरशाद। कितना वक्त है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं अभी तक के कितना वक्त गुजर गया है। सर अभी 37 मिनट्स की हमारी नशरियात हो चुकी हैं, तो अच्छा अभी अच्छा है अच्छा, टाइम, पे ऐसा मसला नहीं जी। चलें ठीक है। जी आप बता ठीक करें। है, अब जब आप रोकना चाहें मुझे रोक लीजिएगा, जी बिल्कुल जी, ऐसा कोई मसला नहीं मेरे साथ नहीं है। जी जी गालिब की तरफ जो मैं आया हूँ, जी वैसे जी तो खैर इब्तदा से, चूंकि क्लासिक्स में मैंने मैट्रिक तक इतने लोगों को पढ़ चुका था, क्लासिकल, नज़ीर अकबर आबादी, मीर, सौदा, वली, जी जी कुली कुतुब शाह, उससे वली से भी पहले कुली कुतुब शाह, जी जी गालिब हम्म, और इकबाल, ये सब मैं पढ़ चुका था। जितनी जी जी तफहीम उस जमाने में हो सकती थी, अपने मुताले और अपने मुशाहदे और अपनी जो कह लीजिए कि अंदरूनी जो भी मेरे अंदर था, तो वो जी उस जी वक्त कर लेता था। लेकिन पढ़ मैंने सबको लिया था। जी 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 और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि बाद में जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ, तो उसमें यानी काफ़ी मैच्योरिटी मेरे अंदर आ चुकी थी। और हफीज़ जालंधरी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ा था, जी तो जी हफीज जालंधरी जो है वो सदारत कर रहे थे और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, हफीज जी जी जालंधरी मरहूम ने। जी तो जी ये बेशक, वाकया है। इसके अलावा और बहुत सारे शुअरा थे उस जमाने के। कॉलेज के बाद में फिर जब हम आए हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, लेक्चरर में हो गया, उस जी वक्त जी फिर फैज साहब से, फराज साहब से, जोश साहब से, जी जी और इसी तरह के बहुत सारे जो मशाहिर हैं जी आलमी सतह के, उनसे जी मुलाकातें भी रहीं। दो जानू होकर बैठते थे उनके सामने, जी और जी कभी बेशक, कभार वो हमसे फरमाइश करते थे पढ़ने के लिए। तो उस वक्त जी भी जी कॉन्फिडेंस का ये आलम था कि जी जी जोश साहब के सामने, फैज साहब के सामने मैं बेशक, अपनी चीजें पढ़ता था, और तारीफ उसमें काफी जी जी वो दिया बेशक करते थे। बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो ये वो जमाना है जब मैं गालिब वाले रंग की तरफ माइल हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जी मुझ जी पर गालिब ने बहुत असर डाला था। उसकी जो फिक्र है, उसकी ज़बान का इस्तेमाल है, उसकी जो तराकीब हैं, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर किया था शुरू ही से। जी तो ये वो गज़ल है जो मेरा सफ़र है
शायरी का उसका आप दूसरा दौर कह सकते हैं, जहां से मैंने गालिब का हाथ पकड़ा, गालिब का दामन पकड़ा और उसके साथ साथ चलना शुरू हुआ, अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हुए। मैं वो गजल पढ़ रहा हूँ कि जहां पर गालिब जो है वो मुझ पर बुरी तरह से छा चुका था। जी जी। ये भी फितरत की कोई हमसे शरारत ही ना हो। क्या कहने वाह। ये भी फितरत की कोई हमसे शरारत ही ना हो, आगही जिसको समझते हैं वो गफलत ही ना हो। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह फितरत की क्या कहने, वाह। कोई हमसे शरारत ही ना हो, आगही जिसको समझते हैं वो गफलत ही ना हो। क्या कहना है, वाह वाह। खौफ है तरके मरासिम का, शेर सुनिएगा जी। खौफ है तरके मरासिम का, वाह, वगरना तुझसे, खौफ है तरके मरासिम का, वगरना तुझसे यूं नहीं है कि हमें कोई शिकायत ही ना हो। अरे वाह वाह, खौफ है तरके मरासिम का, वाह क्या शानदार, वगरना तुझसे यूं नहीं है कि हमें कोई शिकायत ही ना हो। क्या कहना। और ये शेर देखिएगा, ये शेर देखिएगा, इसको आप तसव्वुफ में डाल दें, इसको आप किसी एतबार से भी देखें, लेकिन बहरहाल शेर जो है वो, मैं ये नहीं दावा करता कि मैं गालिब की टक्कर या ये, लेकिन ये है शेर की अगर तफहीम मेरे नाजरीन कर सकते हैं वो देख। लरज उठता हूँ उठाते हुए चेहरे से नकाब, वाह वाह वाह। लरज उठता हूँ उठाते हुए चेहरे से नकाब, पसे जलवा भी कहीं पर्दे हैरत ही न हो। अपने दोस्त के चेहरे से नकाब उठाते हुए, क्योंकि मुझे तो तमन्ना है कि मैं उसे देखूं, उसका दीदार करूं, उसके जलवे से फैजियाब हूं, लेकिन मैं खुद इस बात से ये सोचकर लरज उठता हूं कि अगर उसका चेहरे से पर्दा उठाया तो शायद मुझे उसका जलवा फिर भी नसीब ना हो, वहां पर भी एक पर्दा हैरत बीच में ना आ जाए। शेर फिर देख लीजिए, बहुत अच्छा, साफ, बहुत अच्छे से समझ में आया। वाह वाह, लरज उठता हूँ उठाते हुए चेहरे से नकाब, पसे जलवा भी कहीं पर्दा हैरत ही ना हो, हैरत ही ना हो। अव्वल की शनासाई में लज्जत ही सही। ये गालिब की शोखी, हाँ जी, गालिब की शोखी जो है वो मुझे इतना ज्यादा हॉन्ट करती है कि मैं उससे फिर बाज नहीं आता। और अब भी यही बात है, अव्वल की शनासाई में लज्जत ही सही, आखिर को ये चाहत भी मुसीबत ही ना हो। बहुत अच्छा है, क्या कहने, उनकी शोखी और ज़राफत ही तो है जो कुछ भी है। बेशक शोखी बहुत है। अव्वल की शनासाई में लज्जत ही सही, आखिर को ये चाहत भी मुसीबत ही ना हो। इश्क के खेल में क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसके खेल में क्या कुछ नहीं हो सकता है जी। इश्क के खेल में क्या कुछ नहीं हो सकता है, हो भी सकता है कि अब तेरी जरूरत ही ना हो। जरूरत ही ना हो। वाह वाह वाह, क्या कहना। इश्क के खेल में क्या हर चीज मुमकिन है। जी बिल्कुल। इश्क के खेल में क्या कुछ नहीं हो सकता है, हो भी सकता है कि अब तेरी जरूरत ही न हो। यानी और भी हो सकता है, आपका मतलब ये कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ भी हो सकता है, तू नहीं और सही,
वो ना सही और सही। और इश्क के खेल में क्या कुछ नहीं हो सकता है, हो भी सकता है कि अब तेरी जरूरत ही ना हो। अब मुझे बता दीजिए एक आध दो चार शेर और पढ़ूं या जी, अब जैसे मैं आप। अभी आपसे सुनेंगे, मैं अभी थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहा था आपसे कि जी वो जी तो आप तो अब शुरू से आपका ताल्लुक तो रावलपिंडी से ही, आप जैसे आपने बताया कि वो जी जी तालीम आपने रावलपिंडी से हासिल की है, तो ये जी मैं जी जानना चाह रहा था कि ये जो इतना माशाल्लाह आपको उर्दू ज़ुबान के ऊपर अबूर है और उर्दू अदब में, ये जी इसकी क्या वजह है? आपने ये क्या ज़्यादातर क्या पढ़ा है? और ये उसमें सिर्फ ही उर्दू का ही सब्जेक्ट था या आपने कुछ और भी पढ़ा था उसमें? तो और दूसरा जैसे आपने ये भी जी, जी। एक और भी सवाल उसके साथ ये है कि आपने काफ़ी शुअरा के नाम लिए जो काफ़ी शोहरत याफ्ता शुअरा थे। तो वो उससे मैं पूछना चाहता था कि जॉन एलिया से कभी आपकी मुलाकात हुई है? कि वो भी मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, इसलिए मैं उनका भी जानना चाहता था। तो ये ज़रा प्लीज़ आप मुझे बता दें। जी, मैं अर्ज करता हूँ। जी, पहली बात तो ये है कि मेरी पैदाइश भी रावलपिंडी की है, मेरी जी, एजुकेशन भी रावलपिंडी की है, जी, और तमाम यानी स्कूल से लेकर पहली जमात से लेकर और जी, मास्टर्स तक वो जी, रावलपिंडी की है। जी, जी, उसके बाद इत्तेफाक की बात है, मेरी अपॉइंटमेंट मैं 24-25 साल का था जी, जी, जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी एज लेक्चरर। जी, यहाँ पर कॉलेज है गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज, जी, वहां जी, पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। जी, गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज, GORDON, जी, जी, गार्डन नहीं, गॉर्डन, गोल्डन, गोल्डन, GORD जी। जी, तो वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन का जब इंटरव्यू मैंने दिया है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। जी, जी, मैंने BSc किया था, आपने बल्कि ये सवाल भी पूछा है। जी, मैंने BSc किया था मैथमेटिक्स, फिजिक्स में और डबल मैथमेटिक्स में, डबल जी, मैथ्स था। जी, डबल जी, मैथ्स से मुराद ये है कि 200 के बजाय वो 400 नंबर का बहुत ही टफ कोर्स होता है और जी, उसमें जी, किताबों की भी भरमार होती है। बेशक, तो डबल मैथ्स और फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन की थी। जी, उसके बाद में मास्टर्स जो है वो उर्दू में मैंने कर ली पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जाते के साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा, बड़े बड़े आलिम हजरात वहाँ बैठे थे, फुल प्रोफेसर वहाँ बैठे थे, डॉक्टर वहीद कुरैशी जिनका के तनकीद के मैदान में और तहकीक के मैदान में बड़ा नाम है, वो जी, चेयर कर रहे थे। कहने लगे कि आप, ये बात समझ में नहीं आती कि आप जो हैं आपने साइंसेस में ग्रेजुएशन की है और अब आप लिटरेचर की तरफ आ गए हैं। जी, तो मेरा जवाब ये था, शायद इतने कॉन्फिडेंस से मैंने जवाब उस वक्त नहीं दिया होगा, बच्चा था मैं, 24 साल का, जी, जितने कॉन्फिडेंस से आज दे रहा हूँ। और फिर वो तो इंटरव्यू था, वहां तो वैसे ही नर्वस हुआ होता है आदमी। बेशक, बेशक, मैंने कहा सर बात ये है, जो बात मैंने कही उसका अलबेलबाब आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा सर बात ये है कि अव्वल तो ये बात कोई हैरत अंगेज नहीं है कि एक शख्स के अंदर साइंसेज और लिटरेचर और आर्ट्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे इकट्ठे ना हो सकते हो, अगर चाहिए मुतजाद बातें समझी जाती हैं। जी, फिर मैंने उन्हें एक मिसाल दी, बस वो मिसाल देकर और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, जी, मैंने कहा सर बात यह है कि मैं आइंस्टाइन की एक ट्रांसलेटेड किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक मीडियम होता है, किसी भी चीज के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। बेशक, बेशक, तो जैसे आवाज है, आवाज के लिए मीडियम जरूरी है, चाहे वो हवा का मीडियम हो या कोई और मीडियम हो। कोई जी, तो मैंने कहा कि सर बात यह है कि काफी अरसे पहले तक हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें ये तस्वुर पाया जाता था कि सूरज से जो हरारत और रोशनी जमीन तक पहुंचती है, अब जाहिर है बीच में तो वैक्यूम है, बीच में तो बेशक, कोई मीडियम नहीं है, तो ये बेशक, जो पहुंचती है तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। और बेशक, चूंकि साइंसदानों को ये पता नहीं था कि मीडियम कौन सा वाला है, क्योंकि तो वैक्यूम था, तो उन्होंने एक फर्जी नाम रख लिया था ईथर, ETHER, ईथर। ठीक है, और सबसे पहले आइंस्टाइन ने इस बात को रद्द किया। तो जी, मैंने उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा मैं एक मर्तबा आइंस्टाइन की किताब पढ़ रहा था, ट्रांसलेटेड, जाहिर है कि उसकी ज़ाहिर बात है, जबान में इंग्लिश में ट्रांसलेटेड थी। तो जी, उसने ये जुमला लिखा कि इट वाज थॉट दैट द हीट ऑफ द सन एंड द लाइट ऑफ द सन travels through a medium called ether, but
there is no other medium. It can travel heat, and this light can travel without a medium. And now in future, ये आइंस्टाइन का जुमला है, and now in future we shall not repeat E-R. ये उसका जुमला था, E-R. मैंने कहा सर देखें इसमें कितना बड़ा अदबी टच है। आइंस्टाइन ये भी तो कह सकता था कि बट इन फ्यूचर वी शैल नॉट डिस्कस अबाउट ईथर, लेकिन उसने ईथर का नाम लेना तक गवारा नहीं किया और उसने E-R लिखा। मैंने कहा ये उसका लिटरेरी सेंस था, उसे पता था कि यहाँ पर जुमले को इस तरह से लिखा जाना चाहिए। और इसके अलावा आइंस्टाइन के बहुत सारे ऐसे अक़वाल हैं जिनके अंदर आपको लिटरेचर की बातें मिलती हैं। मैं इस बात को यहाँ पर रोक लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे सब्जेक्ट्स जो थे बुनियादी तौर पे वो साइंस के सब्जेक्ट्स थे और प्री इंजीनियरिंग वाले थे, प्री मेडिकल वाले नहीं थे। ना मैंने अपने किसी बच्चे को मेडिकल की तरफ जाने दिया। मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मेरी एक बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बेटा जो है जो ये सारा मैनेज कर रहा है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, आपके ये फेसबुक और ये तमाम चीज़ें वो बेचारा मैनेज कर रहा है, अब तक बैठा हुआ है मेरे साथ ही। वो उसने डॉक्टरेट की हुई है, PhD किया हुआ है और वो भी इसी फील्ड में है। और डॉक्टरेट में बेशक आकर वो थोड़ा सा मेडिकल का फील्ड इसलिए आ गया कि उसने बायो इंजीनियरिंग में PhD की है। जाहिर है कि उसमें फिर बायोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। जी। इस तरह मेरे बाकी बच्चे, मैंने किसी को उस फील्ड की तरफ जो प्रोफेशन होता है ना, लड़कियों का खास तौर पे ये होता है कि वो मेडिकल साइड पर चली जाए, मैंने बावजूद उसकी वजूहात बयान करने की को खास मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता, उस तरफ नहीं जान दिया। अच्छा, ये तो हो गया मेरा अपना। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी कि हाँ इन बड़े शोरा के साथ। जी हाँ, उसके बाद में ये हुआ कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ महाफिल और मुशायरे वगैरह होते थे, हम भी पढ़ते थे और दाद भी मिलती थी, तो इनके साथ काफ़ी बैठना उठना हुआ। आपके जितने नाम आपने लिए हैं इनके साथ बैठना उठना हुआ और जो भी हम तारीफ़ी कलिमात उन्होंने मेरे बारे में कहे वो अपनी जगह पर हैं। तो इस तरह से, और पता नहीं आपने क्या सवाल किया था, जॉन एलिया से आपकी मुलाकात हुई? अच्छा, जॉन एलिया से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। एक तो वो कराची या फिर आलमी मुशायरों के लिए बाहर रहते थे। अगर पिंडी कभी आते भी थे तो मेरे इल्म में नहीं था, और ना उस जमाने में जॉन एलिया, आजकल तो ये इसका जमाना है फेसबुक और ये आपके गूगल और यूट्यूब का, आजकल तो बहुत सारे लोग, बल्कि अवामी सतह पर बहुत मकबूल हो गया है जॉन एलिया, लेकिन उस जमाने में इस तरह से नहीं था। दूसरी बात यह है कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जॉन एलिया के बारे में जो मैं इसलिए बयान नहीं करना चाहता कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जॉन एलिया कोई छोटा शायर था, बहुत बड़ा शायर था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने जिस अंदाज में छोटी बहरों में शेर कहे हैं और बिल्कुल इस तरह जैसे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह के शेर हैं, जाहिर है कि वो बहुत बड़े शेर हैं। उसको सिलेक्ट करके अगर किया जाए तो फिर तो जॉन एलिया मेरा जो है वो समझिए कि इकबाल के बाद में नया आने वाला, नए लबो लहजा का अगर कोई शायर आया है तो वो जॉन एलिया आया है। लेकिन उसके लिए हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंतखाब करना पड़ेगा। बाकी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे मैं मुतासिर नहीं होता, शायद दुनिया होती हो। मैं अपनी जाती राय पेश कर रहा हूँ, इसको ये ना समझा जाए, मैं जाती राय पेश कर रहा हूँ। बहरहाल जी, और कुछ पूछना है? बहुत शुक्रिया सर, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है और दिल तो करता है कि कंटिन्यू करते रहें, और टाइम अभी 54 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबिया जी से भी एक और गजल सुनने और उसके बाद अभी और सुनना है। ये आपकी गजल से इख्तिताम फिर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं जी सबिया जी की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक गजल के 2-3 इशारा आपकी नजर करना चाहता हूँ, अगर जी इरशाद। शुक्रिया। अर्ज़ा के रोशनी का बदन कैसा चमकता है, रोशनी का बदन कैसा चमकता है, मेरे अंदर से शोला सा लपकता है, मेरे अंदर से शोला सा लपकता है,
کوئی آتش فشاں ہے یا کہ سورج ہے، ہم، کوئی آتش فشاں ہے یا کہ سورج ہے، بے طرح کی حرارت سے دہکتا ہے، بے طرح کی حرارت سے دہکتا ہے، اور ایک زمین ہے میرے پاؤں جلاتی ہے، ایک زمین ہے میرے پاؤں جلاتی ہے، اور ایک سورج میرے سر پر دہکتا ہے، اور ایک سورج میرے سر پر دہکتا ہے۔ پوری غزل سنانے کا تو ابھی وقت نہیں ہے، تو میں دوبارہ سے التماس کا پر احترام محترمہ صبیہ صاحبہ سے گزارش میں نے کروں تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن کیا تحت میں سنو، تحت میں سنو؟ ہاں تحت میں سنا دیں گے، اچھا ہے کہ ٹائم تھوڑا کم لگے گا۔ جی جی ہاں میں یہی تو میں سوچ رہی تھی کہ جی کیا کروں۔ چلیے میں اپنے ایسی غزل کچھ سناتی ہوں کہ جی جس کا شعر جس نے زندہ رکھا مجھے آج تک، اس میں ایک شعر ہے ایسا جس کی وجہ سے میں زندہ رہی، تو میں اسی کے شعر تحت میں سنا دیتی ہوں، کبھی ترنم پھر کبھی صحیح، کوئی نہیں۔ جی انشاءاللہ ویسے یہ غلط فہمی دور کر لیں، اپنی سانسوں سے انسان زندہ رہتا ہے، شعر نہیں جو وہ ہے وہ مطلب سانس فنی اعتبار سے یہ شاعر نہیں، تو ایسی ہی باتیں کرتا ہے، آپ جب نے پھر شاعری ایک کیا وہ جو ایسی آپ باتیں نہ نے کرے۔ پھر ایک اور لفظ غلط استعمال کر لیا۔ جی فنی جی اعتبار سے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، فنی ہاں اعتبار ہاں آپ نے یہی کہا نا کہ فنی اعتبار سے میں زندہ نے ہوں۔ ہاں مجھے شعر نے زندہ مطلب یہ کہ میں غائب تھی، زندہ سے مراد یہ ہے کہ یہ شعر روٹیٹ کرتا رہا، یہ زندہ ہاں رہا، اب میں اور دوسرے لفظ یہ کی سب طرف کی آ جاتا سماعتوں ہوں، میں۔ جی اب میں جی دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ فنی جی نے نہیں، فنی شعر نے، فنی ہاں فنی فنی شعر نے، جی ہاں ہاں فنی فنی نہیں، شعر نے، جی 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 بسم آپ اللہ۔ نہیں ریپیٹ وہ ہو گیا تھا فنی جی نہیں، آپ نے اس کو وہی سوچ لیا، میں بول دی ہوں میں گی وہی جلدی تو میں، بات کر رہا ہوں، ہاں نہیں میں وہی فنی تو بات اعتبار کر سے، رہا ہوں، جی وہی بات ہاں کر رہا ہوں نا۔ جی ہاں شعر زندہ فنی نہیں اعتبار رہتا، سے، شعر تو جو ہے وہ کھا جاتا ہے، ہاں۔ آدمی کو وہ کہاں کہاں زندہ رکھتا ہے۔ بے شک سوری وہ شعر بہرحال میں اسی سے جی زندہ رہی، ورنہ جی سبیہ سنبل کو تو تصور ہی نہیں کوئی کر پا رہا تھا، لیکن سبیہ سنبل کا شعر زندہ تھا، جس کی وجہ سے پھر جاننے کی کوشش کی کہ کون ہے یہ، انہوں نے سوچا مر ٹھیک کھپ گئی ہوں گی بڈھی بڈھی ہو آ کے، تو یہ ذہن میں تو تھا ہی نہیں اس کا، تو میں تو زندہ اسی سے ہوئی، اور یہ ابھی تک اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں لوگ، تو یہ ہے بہرحال میری میں کہانی یہ ایسی ہے۔ اور سن جی لیجئے میری بات سن لیجئے، جی ازراہ ہاں تفنن یہ جتنی باتیں کی ہیں، مجھے معلوم میں ہے کہ شعر کس طرح زندہ رکھتا ہے، اور یہ مجھے معلوم سمجھ ہے کہ رہی ہوں، جی مجھے معلوم میں تھوڑا سا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی نہیں ہنسی نہیں بہت مذاق کی اچھا کیا بات ہو آپ نے، جائے، نہیں اچھی ارے بات کیونکہ نہیں ہے نہیں نہیں بہت اچھا کیا، پروگرام بور ہو جاتے ہیں نا، جی مشکل بے یہ شک ہے، بے شک اس جی لیے جی میں نے یہ کیا ہے۔ نہیں ایک نہیں تو بہت فنی شکریہ، ایک تو بہت فنی کے وہ لفظ پر، اصل میں ایک میں تو نے جلدی کہا، میں ویسے میرا ماشاءاللہ تلفظ بہت اچھا ہے، اور اس پر مجھے بچپن سے بہت زیادہ اس پر توجہ دلائی گئی ہے، اس لیے فنی ہی کہتی ہوں میں، لگ رہا ہوگا وہ فنی ہو گیا جی ہوگا، جی اور آپ ظاہر دیکھیے گا، آپ نے فنی کہا تھا اسی ہے لیے میں نے پھر ہاں فنی کو تو ہاں جی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جی لیکن فنی اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں اور ٹھیک ہے خیر میں پیش کر رہی ہوں کہ کس کی یہ سیاست ہے، کس کی ہیں یہ تدبیریں، ہاں جی واہ کس واہ کی یہ سیاست ہے، کس کی ہیں یہ تدبیریں۔ تدبیریں، ہماری آواز ریپیٹ کیوں آ رہی ہے؟ ریپیٹ آ رہی ہے آواز، میں ہے نا؟ مائک آف کر کے دیکھتا ہوں پھر نہیں نہیں کیوں، کس وجہ سے آ رہی ہوگی؟ کس کی یہ سیاست ہے، کس کی ہیں یہ تدبیریں، رہزنوں نے پائی ہیں راہبروں کی تقدیریں، رہزنوں نے پائی بولو۔ ہیں راہبروں کی تقدیریں، اور میرے اچھا خواب وحشت کی جانے کیا ہوں تعبیریں، واہ واہ میرے کیا میرے خواب خواب وحشت کی، جی میرے خواب وحشت کی جانے کیا ہوں تعبیریں، دار ہے نہ زنداں ہے، طوق ہے نہ زنجیریں، دار ہے دار ہے نہ نہ زنداں، زنداں ہے، کیا طوق تو ہے نہ نہ زنجیریں، زنجیر ہے۔ ہیں واہ اور غزل کا شعر کہ آپ کی امانت ہیں آپ ہی جی مٹا دیجئے، واہ آپ کی امانت ہیں آپ ہی مٹا دیجئے، یہ نقوش الفت کے یہ وفا کی تحریریں، ہاں یہ کیا کہنے، نقوش واہ یہ واہ نقوش الفت کے الفت کے کیا یہ وفا کی وفا تحریر۔ کی تحریریں،
बहुत और खूब, अब वो बहुत शहर पर मैं आ रही हूँ, जो मैंने ताजमहल की खूबसूरती को देखकर, मैं उस वक्त वाह आर्ट्स पढ़ रही थी, जबकि मैं जी मुझे मैथ्स ही दिलाया गया था, जो मैं चेंज करके फिर मैं आर्ट्स में गई थी, मुझे फाइन आर्ट्स जी फिर मुझे मिला। वाह तो जी जी बस तभी ये शेयर हुआ था कि आप ये कह रहा है सदियों से ताज का हंसी चेहरा, वाह कह रहा कह है सदियों से ताज का ताज का हंसी चेहरा, वाह फन अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें, जी वाह वाह फन वाह अगर वाह मुकम्मल हो मुकम्मल हो बोलती बोलती हैं हैं तस्वीरें। तस्वीर वाह तस्वीरें। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया बहुत कि खूबसूरत। लोग जाने क्यों उसको कह हम्म, रहे हैं दीवाना, लोग जाने क्यों उसको कह रहे कह हैं रहे हैं दीवाना, दीवाना। वो तो अपने ख्वाबों की ढूंढता है ताबीरें, वाह वो क्या तो कहने, क्या कहने। वो तो अपने अपने ख्वाबों ख्वाबों की की ढूंढता है ढूंढता ताबीरें। है वाह वाह ताबीरें, ताबीरें, वाह वाह और वाह मकता है कि जी लूट लें ना फरजाने वाह अजमते जुनू सुम्बुल, वाह लूट वाह लें लूट लें ना न फरजाने फरजाने। अजमते जुनू सुम्बुल, वाह जी थक गए हैं दीवाने सो गई हैं जंजीरें, वाह वाह थक वाह गए हैं दीवाने दीवाने। वाह सो गई भी है हैं जंजीरें, तस्वीरें। वाह किसकी ये सियासत है, हम्म, किसकी हैं ये तदबीरें, वाह राहजनों ने पाई हैं राहबरों की तकदीरें। बहुत वाह शुक्रिया, क्या बहुत 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 नवाजी बहुत समा जबरदस्त, बहुत कराची माशाल्लाह के बहुत लिए। खूबसूरत बहुत रस्ता शुक्रिया, गजल आपने बहुत सुनी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। बहुत तो अब मैं शुक्रिया। बिला तमहीद के, क्योंकि हमारी जो नशरियात हैं 1 घंटा और 1 मिनट की हो चुकी हैं, तो अब मैं बिला तखीर जो है वो मोहतरम जनाब प्रोफेसर नवाब नकवी साहब से गुजारिश करूंगा बहुत अच्छा लगा मुलाकात जी, की बल्कि आप मैं उनसे। और अगर इनके पास अवेलेबल हो तो इनकी एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, जो है जो सलीम कौसर साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसकी रदीफ इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से और नए अंदाज से यूज़ की है। अगर वो अनायत कर दें तो अच्छा लगेगा। जी मैं देखता हूँ। जी जी वो किसी जमाने में आपको याद होगा जी जी कि एक गजल बड़ी मशहूर हुई थी सलीम कौसर की। बेशक बेशक जी, क्या थी जी के सरे आईना मेरा अक्स है, बेशक पसे आईना। फंसे आई ना कोई और कोई है। और है, कोई पहला और। पहला मिसरा याद है आपको? जी अ, अभी मुझे सोचना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। सरे सरे आईना मेरा अक्स है, जी पसे आईना कोई और है, बेशक मैं ख्याल हूँ किसी और का, किसी और का, मुझे सोचता कोई और। मुझे सोचता सोचता कोई और है। वाह जी मैं ये उनकी गजल थी और बहुत अच्छी, जी जी, यानी उस जमाने में बड़ी बहुत खूबसूरत बड़ी गजल, बेशक मकबूल हुई। और बेशक बहुत खास तौर पर इसका जो मतला था वो जी वाकईतन बहुत जी कमाल का बेशक था। आगे शेर जो थे उनमें कहीं कहीं गलतियां थी, जी जी वो जो जिनको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। जी जी शेरों में गलतियां मौजूद थी, जी लेकिन ये मतला तो इतना जबरदस्त था बेशक कि बेशक उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने वो किया उस पे, उनकी जमीन में लिखा है जी जमीन में, हाँ इस जमीन में लिखे थे। अब मैं जी जी ढूंढ रहा हूँ। तो वो क्या है कि अ, है अगरचे। अच्छा, इसमें मैंने ये किया जी कि काफिया बदल दिया था। जी मैं साउंड इफेक्ट जो है ना, वो म्यूजिकल जो रिदम होता है ना, जी जी हमेशा शेर में जहां और बहुत सारी बातों का ख्याल रखता हूँ, उसमें यह है कि उसका जो रिदम या जी उसका जी जो एक साउंड इफेक्ट है, साउंड क्या कहेंगे उसको, मेलोडी एक का वजन, आपकी वजन। जो, नहीं वजन तो खैर है ही, यानी अच्छा, आपके कानों को अच्छा तासुर जो है वो मिले। जी जी तो जी जी, मैंने उस वजह से इसका काफिया जो है, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, काफिया जो है वो बदल दिया था। जी जी है अगरचे पेशे निगाह तू, पसे जान नेहा कोई और है। कोई और है, वाह हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, ये मैंने काफिया जो है नेहा और यहाँ बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा, बिना बहुत इस अच्छा। तरह करके जी काफी वाह वाह। तब्दील किए थे। बेशक बेशक है हम्म हम्म अगरचे हम्म। पेशे निगाह तू,
पसे जान नेहा कोई और है, कोई और है। मेरी जान ये है अगरचे पेशे निगाह तू, पसे जान नेहा कोई और कोई है, और है। वाह मेरी जान तू ही सही मगर मेरी जान जान कोई और है, मेरी जाने जहाँ कोई और है। वाह क्या कहना। मेरी जान तू ही सही मगर मेरी जाने जान कोई और है। चलो गुल रुखों की जवानियां तो खरीद सकते हैं अहले जर। जी वाह क्या कहना। आवाज आ रही है मेरी साफ? बेशक जी जी बेशक जी आप- बिल्कुल। शेर देखिएगा, शेर देखिएगा। जी इरशाद अता। चलो गुल रुखों की जवानियां तो खरीद सकते हैं अहले जर, मगर इतना तय है कि फातहे दिले दिल बरा कोई और है। कोई और है। वाह क्या कहना। चलो गुल रुखों की जवानियां तो खरीद सकते हैं अहले जर, वाह मगर इतना तय है कि फातहे दिले दिल बरा कोई कोई और और। है। कोई और है। वाह वो गरीबो सादो खुशगुमा वाह के चले थे हम रहे रहज़ना, सॉरी हाँ, वो गरीबो सादो खुशगुमा के चले थे हम रहे रहज़ना, उन्हें दूर जाके खबर हुई कि ये कारवां कोई और है। कोई और है। वाह बहुत अच्छा है। क्या वाह कहना। वाह वाह, बहुत अच्छा है। खूबसूरत माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। तू कतीले नावके दुश्मना मैं क्या शिकारे साजिशे दोस्तां। वाह ये बहुत सुंबुल अच्छा। साहिबा वाह वाह आप देखिएगा, वाह वाह इसमें वाह एक वाह। माशरती पहलू जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने नुमाया किया है, जो कि हर दौर का मेरा ख्याल ये अलमिया रहा है, आज भी है। तू कतीले नावके दुश्मना मैं शिकारे साजिशे दोस्तां, तेरा वाकया कोई और था मेरी मेरी दास्तां कोई और है। बहुत अच्छा है ये तो, बहुत तेरा वाकया कोई और था। वाह तो कतीले नावके दुश्मना मैं शिकारे साजिशे दोस्तां, तेरा वाकया कोई और था मेरी दास्तां कोई और है। गमे इश्क से मैं रिहा हुआ तो गमे जमाना ने आ लिया। वाह क्या कहना। गमे इश्क से मैं रिहा हुआ तो गमे जमाना ने आ लिया, वही जख्म है वही तीर हैं मगर अब कमा कोई और है। कोई और है। बहुत अच्छा है। वही जख्म है वही तीर हैं मगर अब कमा कोई और है। और आखिरी शेर है, मैं आतिशी की तजल्लियों से जबीने शीशा है लाला रंग। वाह 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 बहुत अच्छी थोड़ा मुश्किल शेर है, थोड़ा मुश्किल शेर है। मैं वजाहत कहेंगे तो कर दूंगा वरना नहीं करूंगा। नहीं करनी चाहिए वजाहत, हमें समझने दीजिए खुद ही। खुद समझने लगता है जी। मैं आतिशी की तजल्लियों से जबीने शीशा है लाला रंग, तो ये मान लो पसे पर्दे रुखे गुल रुखा कोई और है। कोई और है। बिल्कुल तो ये मान लो, बेशक क्या खूबसूरत अल्फाज। तो ये मान लो पसे पर्दे रुखे गुल रुखा कोई और है। बस ये हो गई जी। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत ज्यादा मुझे मसरत हुई और अच्छा हुआ कि मैं इस प्रोग्राम में आ गई कि आपसे मुलाकात हुई और इंशाल्लाह कभी फिर जरूर होगी। मैंने कहा मैं इतना तो बोल ही दूं कम से कम, क्योंकि इफ्तिखार साहब जल्दी से जब प्रोग्राम खत्म करेंगे फिर मैं नहीं बोल पाती ना, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बोल दूं। तो मैं भी जल्दी से बोल देता हूँ कि जो अल्फाज आपने मेरे लिए कहे हैं ऐने ही इसको 4 से ज़रब देकर अपने लिए रख लें। जी अच्छा जी माशाल्लाह बहुत शानदार आज का प्रोग्राम रहा और बहुत ही खूबसूरत कलाम आप माशाल्लाह दोनों ने खूबसूरत शायरी से नवाजा और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन जिन्होंने हमें कमेंट दिए और दाद दी है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। दिल तो कर रहा था कि ख़त्म ना करें, फिर क्या करें, ये मजबूरी है, ख़त्म तो करना पड़ेगा। इसलिए तमाम दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन का भी। तो इसलिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़।